गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. Trading account is open in the trading organization for the purpose to find out the gross profit or gross loss incurred during the year. इससे पहले हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट क्या है. ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. सो हियर रूल, nominal accounts rule, that is a debit the expenses or losses, credit the income or gains. And this trading account is open in the trading organization for the purpose of to find out the gross profit or gross loss incurred during the year. तो gross profit कितना है, gross loss कितना है, ये सब जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं. So we know that as per the rule, all direct expenses are transferred to the debit side of this account and all direct income transferred to credit side of trading account. If the trading account's credit side is more than the debit side, then account shows the gross profit and vice versa. It means when credit side, so credit side it means that is a direct incomes, and this direct income more than the debit side, and debit side that the direct expenses. It means when credit side of trading account is more than the debit side, then account shows the gross profit. एंड वाइस वर्सा मतलब जब डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर दैन और इज मोर दैन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सो इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस. एंड रिमेंबर दैट ग्रॉस प्रॉफिट हैव अ credit balance because here credit side is greater than debit side, so it is called gross profit. And gross loss have a debit balance because debit side is greater than credit side of trading account. Then afterwards this gross profit or gross loss is transferred to profit and loss account. So here is one definition. J.R. Bartleby. The trading account indicates the results of buying and selling of goods. While preparing this account, the general establishment charges are ignored and only the transaction related to goods are included. तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट क्या करता है, रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. So it is indicates the result of buying and selling of goods. While preparing this account, there are general establishment charges are ignored and only transaction related of goods are included. So here is next one, that is a format of trading account. Trading account for the year ended, debit and credit. So here is a, see here, debit side and first item, that is a opening stock. So debit side, when we transfer all transaction to the debit side, so write down 2 for debit side and for credit you write down start from buy. So first item is transfer, that is to opening stock. Second one to purchases less return outward. इससे पहले हमने देखा है परचेसेस में से लेस रिटर्न आउटवर्ड करते हैं, नहीं तो उसको हम परचेस रिटर्न भी कहते हैं. इसके बाद आता है टू कैरेज इनवर्ड. नेक्स्ट वन फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, इंपोर्ट ड्यूटी, कोल, कोक, गैस, मोटी पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, to royalty on purchase or production, primary packing charges, factory lighting and heating, factory rent and rates, factory insurance and works manager salary. So here are all these direct expenses transferred to the debit side of trading account, and credit side there is a buy sales less return inward, or it is called sales return. By goods lost by fire, goods lost by theft, goods distributed as free samples, goods
lost in accident, goods withdrawn by partners and by closing stock, and last one, that is by gross loss. In the case of combined term of wages and salaries, so remember that if wages and salaries, this item in trial balance, so that time first if there is a wages, start from wages and afterwards salaries, so write down wages and salaries transfer to the trading account. If there is in trial balance there is a salaries and wages, so first item, that is salaries, so salaries and wages transfer to the profit and loss account. Next one, that is profit and loss account. Profit and loss account is the type of nominal account. Profit and loss account is a main account of income statement, and it is prepared to ascertain the net profit earned or net loss suffered by a business concerned during the accounting year. तो इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड इट इज़ द मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, और इट इज़ prepared to ascertain the net profit or net loss also. But all indirect expenses are to be recorded to the debit side, whereas all indirect incomes are to be recorded to the credit side of this account. मतलब प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जो भी एक्सपेंस हो गए, दे आर all indirect expenses, and all indirect expenses transfer to the debit side of profit and loss account, and all indirect incomes transfer to the credit side of profit and loss account. The debit balance of this account shows net loss which is to be transferred to the capital account debit side or deducted from capital. मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते हैं तभी नेट प्रॉफिट आएगा. नेट प्रॉफिट कब आएगा? व्हेन क्रेडिट साइड ऑफ profit and loss account is greater than or is more than the debit side of profit and loss account, so it is called net profit. मतलब उनका जो इनकम है वो एक्सपेंसेस से भी ज़्यादा है, इसलिए नेट प्रॉफिट आएगा. और नेट लॉस कब आएगा? व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड ऑफ profit and loss account, so it is called net loss, and this net profit and net loss transfer to the capital account. So here is a format of profit and loss account. So see here, pro forma profit and loss account for the year ended debit and credit. So here is the debit side, that is two salaries and wages. So here first one, salaries and wages, so it is transferred to the profit and loss account. Rent and taxes, insurance, electricity and lighting, telephone, postages, printing and stationery, traveling expenses of salesman, depreciation on assets, loading charges, audit fees, entertainment expenses, repairs or renewals or maintenance, interest on loan, Sunday or miscellaneous expenses, conveyance, loss by fire, loss by theft, loss in accident, good distributed as free sample, commission allowed or given, discount allowed, allowances, advertisement, carriage outward. So here carriage outward, in our trading account there also carriage inward. So if in our trial balance there is a carriage or carriage inward, so if there is a carriage or carriage inward, so transfer that item to the trading side debit side, trading side of debit side. If there is a carriage outward, so transfer to the profit and loss account debit side. So इनवर्ड होगा तब ट्रेडिंग में, आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में. मतलब कैरेज और कैरेज इनवर्ड होगा तो दोनों में से एक आएगा, इनवर्ड और ओनली कैरेज, तो ट्रेडिंग के डेबिट में ट्रांसफ़र करना है. आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में. नेक्स्ट, सेल चार्जेस, बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल charges, professional charges, bank charges, solicitors fees, secondary packing charges, loss on sale of fixed asset, and to net profit transfer to the capital or current account. So this is all direct expenses transfer to the debit side, and credit side, that is gross profit by gross profit brought down,
commission received, discount received or earned, interest received, dividend received, rent received, sundry miscellaneous receipt, profit on sale of assets. So all these are the indirect incomes, and indirect incomes we transfer to the credit side of profit and loss account, and by net loss transfer to the partner's capital or current account. So this is our profit and loss account. Next one, that is balance sheet. So afterwards we discuss about what is trading account and profit and loss account. So both are the account, but here balance sheet is a statement. This showing financial position of the firm on a particular day. It means balance sheet is not a account, but it is a statement, and this showing that financial condition of the firm on a particular day or date. So here balance sheet, all liabilities are recorded to its left hand side, whereas all assets are recorded to its right hand side. So here is no any direct or indirect expenses or any incomes, but here left hand side is called liability side and right side hand called that is the assets. The balance sheet is not an account but a statement showing the financial position of a firm as on given date in the form of assets and liabilities. So balance sheet is a statement, so it is write down that is a balance sheet as on. Okay, and trading and profit loss account for the year ended, because they are the account and it is a statement, so it is write down as a balance sheet as on. So here see here first one, that is a right hand side, that is the assets. There is a assets are there, all goodwill, land and building, plant and machinery, furniture, equipment, motor van, delivery van, leasehold, premises, patents, loose tools. So all these assets, and these assets, if there is a provision related depreciation, that is the adjustment on these assets, so write down that less from the assets. Next one, investments, store and spare parts. So here also less depreciation, prepaid expenses, outstanding incomes, loans and advances, closing stock. So here is a sundry debtors plus any adjustment. So here is a sundry debtors means it is a customer, and here less bad debts, that new reserve, less provision for discount on debtors, insurance claim receivable, bills receivable, cash in hand, cash at bank. If there is a current account, so that is credit balance. This is our asset, and see here left hand side, that is the first one, liabilities, capital account. There are three partners A, B, C. So here is a partners current account. So here credit balances, general reserve, profit and loss account, loan on mortgage, bank loan, loan from partners, bills payable, bank overdraft, sundry creditors. If there is sundry creditors, add or less any other adjustment, less provision for discount on creditors, outstanding expenses, income received in advance, and provision for taxes. So this is our balance sheet. It means first you prepare trading account, so that gross profit or gross loss transfer to the profit and loss account. Then afterwards you prepare profit and loss account, so that from net profit or net loss transfer to the capital account, and all this capital or current account balance transfer to the liability side, or if there is a credit balance of current account, so write down asset side. Then afterwards this balance sheet is tally. So here are notes, that is every item in the trial balance must be shown only one time and in just one part of the final account, excluding silent or hidden adjustment. मतलब जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें से जो आइटम है उसका जो ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग होगा, फर्स्ट उसका सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट करना है, मतलब एक ही बार ट्रांसफ़र करना है. इफ़ देयर इज हिडन एडजस्टमेंट, सो दैट हिडन एडजस्टमेंट is on the bracket, in brackets are there. Every adjustment must have two effects in final account, so that is a debit and credit. मतलब वहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बाद होगा एडजस्टमेंट होंगे, तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो टाइम आएगा.
So this is our adjustment, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट. फर्स्ट वन क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हमें पता है, 11th में भी हमने स्टडी किया था. तो उसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड और दूसरा आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में. ये दोनों इफेक्ट आप बराबर करेंगे तो आपको इधर 2 मार्क्स मिल जाएंगे. तो आगे का है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिमेंबर दैट इफ देयर इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देन ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और दिस पर्टिकुलर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होगा वो ट्रेडिंग का होगा और प्रॉफिट लॉस का होगा. तो उसको ट्रांसफ़र करना है डेबिट साइड में, लेकिन उस डेबिट साइड में ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में ऐड करना है, वो ध्यान में रखना है. मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तभी ऐड करना है. और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. उसके बाद आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड मतलब है पेड इन एडवांस. तो प्रीपेड आएगा तो ध्यान में रखना है, डिडक्ट करना है और लेस करना है. और ये एडजस्टमेंट होगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के कौन से भी डेबिट साइड के एक्सपेंस पर, तो वहाँ से डिडक्ट करना है. सो डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड. नेक्स्ट वन दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. प्री रिसीव्ड इनकम. अभी ये इनकम मिला है हमें तो इसको प्री रिसीव्ड इनकम बोलते हैं. और इनकम मतलब पता है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा और प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में से जो इनकम होगा वहाँ से डिडक्ट करना है. सो डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आगे का आएगा इनकम रिसीवेबल. So here income receivable add to the particular income on the credit side of profit and loss account. Profit loss का जो इनकम होगा उसमें इनकम ही ऐड करना है. दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा. फिर उसके बाद आएगा बैड डेब्ट्स. सो बैड डेब्ट्स additional or new bad debts shown on the debit side of profit and loss account add to the old bad debts if any. मतलब ये बैड डेब्ट्स प्रॉफिट लॉस में होता है, हम ट्रांसफ़र ट्रायल बैलेंस से करते हैं तो उसमें एडिशनल बैड डेब्ट्स होगा तो हम उसमें ऐड करते हैं डेबिट साइड में. और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट साइड, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो सन्डी डेटर्स होगा वहाँ से पहले डिडक्ट करना है. फिर आगे का आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. सो दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. इट मीन्स न्यू आरडीडी एंड दिस न्यू आरडीडी ऑन this adjustment on the bad debts also and debtors also. So show to the debit side of profit and loss account. मतलब ये जो bad debts होगा उसमें एडिशनल बैड डेब्ट्स ऐड करेंगे. फिर उसके बाद ये आरडीडी है वो भी उसको ऐड करना है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में. और डिडक्ट फ्रॉम द सन्डी डेटर्स. सन्डी डेटर्स में से क्या करना है, डिडक्ट करना है. और सन्डी डेटर्स कहाँ पे होते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. नेक्स्ट होगा रिजर्व फॉर discount on debtors. So show to the debit side of profit and loss account. ये यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउडेड जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में होगा उसमें ये ऐड करना है. और डिडक्ट फ्रॉम सेकेंड इफेक्ट दैट इज डिडक्ट फ्रॉम सन्डी डेटर्स एंड दिस सन्डी डेटर्स मेंशन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड. नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन वी नो दैट डेप्रिसिएशन ऑन when if there is a provision of depreciation, so it is on assets and is less from the particular asset in balance sheet asset side. And second effect आएगा profit loss के debit side में. So show on the debit side of the profit and loss account if there is a depreciation provision. And second effect आएगा less from the particular asset in balance sheet asset side. Next आएगा interest on capital. So show on the debit side of profit and loss account. एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड और ऐड टू द कैपिटल और करंट अकाउंट. नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. शो टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट अकाउंट. मतलब आप कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके डेबिट साइड में आप लिख सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और दूसरा उसमें होगा लेस फ्रॉम द कैपिटल. और सेकेंड इफेक्ट आएगा शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट वन
interest on loan taken show to the debit side of profit and loss account. If there is interest on loan, so first effect transfer to the debit side of profit and loss account, and second effect that is add to the loan taken in the balance sheet liability side. मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लोन टेकन में ऐड करना है. नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और एंड ऑन लोन गिवन, तो शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट से. इसके बाद आएगा इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और एक्सीडेंट. इट मीन्स वो जो गुड्स है उस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका इंश्योरेंस निकाला है, तो उसके 3 इफेक्ट आएंगे. पहला आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सो राइट डाउन देयर ग्रॉस अमाउंट, एंड बैलेंस शीट में क्लेम अमाउंट आएगी, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी. और तीसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, जो अमाउंट ऑफ लॉस होगा. सो हियर if there is this goods is insured, so that time effect are 3 effects are there, that is a trading side, credit side, and balance sheet asset side, and profit loss debit side. if there is uninsured goods destroyed by fire or accident, इंश्योरेंस निकाला नहीं है गुड्स का, तो उसके 2 ही इफेक्ट आएंगे. एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट आएगा वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में. उसके बाद एडजस्टमेंट आती है गुड्स स्टोलन. गुड्स स्टोलन हो गया तो उसका पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड दूसरा इफेक्ट आएगा दैट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट वन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. सो हियर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, इट मीन्स इफ देयर इज अ एडवर्टाइजमेंट and this advertisement transfer to the profit loss debit side, and this adjustment on the advertisement, so add to the advertisement, and second effect that show to the credit side of trading account, and there you write down there goods distributed as free samples. उसके बाद एडजस्टमेंट आएगी गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज़. सो गुड्स विड्रॉ किया है पार्टनर्स ने और उसका पर्सनल यूज़ क्या है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दैट इज़ गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स और फॉर पर्सनल यूज़. और वहाँ पे अगर क्रेडिट साइड में इफेक्ट नहीं देंगे तो परचेस में डिडक्ट भी करेगा तो चलेगा. और दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट से. फिर उसके बाद आएगा ऑन रिकॉर्डेड परचेसेस. ऑन रिकॉर्डेड परचेसेस मतलब जिसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है, परचेस किया है लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको ऑन रिकॉर्डेड परचेसेस बोलते हैं. तो परचेसेस हम ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सो ऐड टू द परचेसेस, सो दैट इज़ द फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट ऐड टू द क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. उसके बाद आएगा ऑन रिकॉर्डेड सेल्स. तो सेल्स मतलब ऑन रिकॉर्डेड, उसका भी जो इफेक्ट है वो पहले आएगा, उसमें सेल्स में ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में होता है ट्रेडिंग के, उसमें ऐड करेंगे. और दूसरा इफेक्ट आएगा डेटर्स जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहाँ पे ऐड करना है. फिर उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो दिस डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन वो इंक्लूड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो पहले उसको डिडक्ट करना पड़ेगा और इसका इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऐड करना पड़ेगा. फिर आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो ऐड टू द पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट इन बैलेंस शीट. फिर उसके बाद आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर. अभी देखो यहाँ पे जो इफेक्ट करना है वो बैलेंस शीट के एसेट में ही करना है, वहाँ पे ही करना है, ना ट्रेडिंग में करना है ना ही प्रॉफिट लॉस में. तो बिल रिसीवेबल होगा तो वहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट में
ऐड करना है सन्ड्री डेटर्स में। और ऐड कैसे करना है? ऐड द अमाउंट ऑफ बिल डिजॉनर टू सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। मतलब सन्ड्री डेटर्स जो एसेट साइड में है उसमें ऐड करना है और लिखना है द अमाउंट ऑफ बिल डिजॉनर। और वहाँ पे ही एसेट साइड में बिल रिसीवेबल होगा उसमें डिडक्ट करना है द अमाउंट ऑफ बिल डिजॉनर। मतलब वहाँ ही क्या करना है? डी सन्ड्री डेटर्स में वो बिल ऐड करना है और बिल रिसीवेबल में से डिडक्ट करना है। फिर उसके बाद आएगा बिल्स पेबल डिजॉनर। तो ये भी इफेक्ट लायबिलिटी साइड में होगा। पहला इफेक्ट होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड करना पड़ेगा दैट द अमाउंट ऑफ बिल डिजॉनर। सो ऐड टू द सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट एंड डिडक्ट फ्रॉम द बिल्स पेबल। सो डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बिल डिजॉनर फ्रॉम बिल्स पेबल। तो दोनों पे इफेक्ट है। बिल रिसीवेबल का इफेक्ट आएगा सन्ड्री डेटर्स में और बिल्स पेएबल का इफेक्ट आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। मतलब वहाँ पे ही करना है एसेट और लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद आएगा डिफर्ड एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 years। सो ईयर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज रिलेटेड टू द करंट ईयर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये जो डिफर्ड एक्सपेंसेस है वो एडवर्टाइजमेंट में क्या करना है? उसमें रिलेटेड टू द करंट ईयर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उसमें ऐड करना है और रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो आपको एसेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ऐसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। मतलब जो हमने सेल किया है गुड्स का वो किस में इंक्लूड है? इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट। दैट टाइम ऐड टू द सेल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड लेस टू द फर्नीचर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट आएगा कमीशन टू पार्टनर्स एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। सो हियर शो ऑन द debit side of profit and loss account and show to the credit side of partners capital or current account or add to the partners capital account. So these are the adjustment. Next are the hidden adjustments are there. If there is hidden adjustment given in trial balance, so that is first adjustment, that is salaries or rent paid for 10 months. So hidden adjustment in bracket में होती है तो उसको hidden adjustment बोलते हैं। और इधर 10 months के हमारा 12 months का ईयर होता है तो यहाँ पे 2 month का हमें जो ऐड करना है अमाउंट उसका 2 महीने का। तो ऐड द अमाउंट ऑफ सैलरीज और रेंट फॉर द 2 months टू सैलरीज और रेंट रिस्पेक्टिवली। सो हियर दिस अमाउंट add to the salaries and rent and our salaries and rent is transferred to the debit side of profit and loss account. And second effect, so separately write down these 2 months, show separately the amount of salaries and rent on the liability side of the balance sheet. Next one आएगा insurance premium paid for 1 year ending 30th June 2019, accounting years end on 31st March 2019. So this insurance premium here is date is that is a 30th June and our accounting year ends on 31st March. तो 30 जून और 31st मार्च, तो 31st मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई और जून। मतलब 3 months का जो है इंश्योरेंस प्रीमियम वो हमें वहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस के इंश्योरेंस में लेस करेंगे और शो सेपरेटली दैट इज़ अ प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज़ अ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर उसके बाद आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो ईयर 4 years का दिया है तो वहाँ से 1/4 अमाउंट हमें क्या करना है? डेबिट साइड में जो एडवर्टाइजमेंट होगा वहाँ से क्या करना है? लेस करना है और फिर शो द रिमेनिंग 3/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फिर उसके बाद आएगा रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट मतलब प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। फॉर 11 month का दिया है तो मतलब 1 month का ऐड करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड प्रॉफिट लॉस के रेंट रिसिप्ट में 1 month का हमें
अमाउंट ऐड करना पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट आएगा वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद आएगा 10% लोन। हियर आल्सो हियर इज बोरोड ऑन 1 जनवरी 2018, सो हियर आल्सो 10% लोन पर हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और फॉर फ्रॉम 31 मार्च, और उसके बाद 31 मार्च मतलब 1 जनवरी टू 31 मार्च 3 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाने ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ऐड टू द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट आएगा 16% इन्वेस्टमेंट परचेस ऑन 1 जनवरी 2019 एंड अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पे भी 3 मंथ्स का जो इन्वेस्टमेंट है रिसीवेबल वो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस के दिखा है, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में। फिर आएगा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, so show the amount of interest receivable on the credit side of profit and loss account and add the amount of interest receivable to the government bonds on the asset side of the balance sheet or shown separately in balance sheet asset side. So these are our hidden adjustment. Here are important points are there. So first one, that each item from trial balance will be included only once. तो ये हमने देखा है कि ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम होगा उसका ट्रांसफ़र एक ही बार होगा। और ईच एडजस्टमेंट हैव 2 इफ़ेक्ट्स फॉर द सिमिलर अमाउंट, तो उस हमें पता है एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होंगे। और जो डेबिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस का वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड होगा ट्रायल बैलेंस का तो वो भी ट्रेडिंग के और प्रॉफिट लॉस और लाइबिलिटी साइड के लाइबिलिटी साइड में जाएगा और ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, हमें तो वो सब पता है। फिर उसके बाद हमने देखा सैलरीज एंड वेजेस सेपरेटली आइटम्स हो गए, तो सैलरीज पहला होगा तो उसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। अब इफ देयर इज अ वेजेस एंड सैलरीज तो ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट आएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 6(1), that is if the trial balance contains only trade expenses, the items will be shown on the debit side of profit and loss account. If the trial balance contains trade expenses and also other items like sundry expenses or office expenses or general expenses or miscellaneous expenses, the items trade expenses shown on the debit side of trading account, while the other items of expenses are shown on the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस होगा तभी वो ट्रांसफ़र करना है डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बट इफ़ देयर इज़ अ ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ ही सन्डे एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये चारों एक्सपेंस में से कोई भी एक भी ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ ट्रायल बैलेंस में होगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र कहाँ करना है, तो इट इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल दैट एक्सपेंसेस ट्रांसफर द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान में रखना है ट्रेड एक्सपेंसेस सिर्फ अकेला होगा तो उसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ उसके साथ ये एक्सपेंसेस चारों होंगे तब ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। Next one, that is provision, bad debts, provision for bad and doubtful debts affected and all that adjustment for the debtors are given effect. So such adjustment can be unrecorded drawings including debtors drawing related as sales etc. Next one, reserve for discount on debtors should be given effect from the adjustment for the bad debts. So reserve for discount creditors given effect after making all the adjustment concerning creditors. So here 11, that is closing stock should be taken as a cost or market price whichever less. मतलब क्लोजिंग स्टॉक के 11 में सिर्फ एक ही अमाउंट आती थी, अभी इधर आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो भी लेस होगी वो आपको ट्रांसफ़र करनी है। फिर उसके बाद कमीशन के अमाउंट कैसे निकालते हैं वो नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो इधर फॉर्मूला दिया है rate of commission multiplied by net profit divided by 100 if it is a net profit after charging such commission. So rate of commission multiplied by net profit divided by 100 plus rate of commission
इफ़ हमें ड्राइंग की परसेंटेज निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है फॉर 6 मंथ, तो रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, इस यहाँ से हम ड्राइंग की परसेंटेज मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं. If a partners introduce capital in the middle of the accounting year, so the interest on capital should be calculated the on appropriate time period only. So this is our all these important items और important points. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करिए, लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए. धन्यवाद.